Hi everyone, a very good evening and a very warm welcome to this session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well, taking good care of yourselves and your loved ones. Sat Shri Akal, Namaskar, Bonjour, Adab. Let's get started with human capital formation and the quality of population. So this chapter that we are basically getting started with is our second chapter of economics, where we are going to talk about people as resource. Now, what does this chapter exactly imply? What are we going to read and study in this? Why are we even discussing about it? पीपल एज रिसोर्स एक तरीके से एक एफर्ट है समझने के लिए कि किसी भी देश में जो लोगों की पॉपुलेशन होती है वो अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग होती है, कहीं बहुत ज्यादा होती है, कहीं बहुत कम होती है। बट क्या ज्यादा होना पॉपुलेशन या कम होना अच्छा है या बुरा है, वो एक्सप्लोर करना। किस तरीके की पॉपुलेशन है जो ये डिटरमाइन करेगी कि वो देश की इकोनॉमी और ग्रोथ में हेल्प करेगी या नहीं। लोगों का जो रोल होता है इन जनरल इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, ऑफ कोर्स वी नो इट्स completely driven by them because nation is its people, but otherwise what exactly role does it do the people have? How can they improve, accelerate or decelerate, for that matter slow down कर सकते हैं growth of any nation? All of that we'll be discussing today. So let's get started. Let me quickly introduce myself. So hi everyone, मेरा नाम है अंकना और मैं हूँ आपकी expert for social sciences at Imbibe, coming with an experience of more than 10 years in the field of education, wherein I've taught the students both online and offline and for CBSE and ICSE, and I have done my studies in the field of humanities. Hence, I specialize in social science and English. Now, moving on, I hope that you guys have done your pre-class activities. If not, just make sure to go through it maybe later on. अगर अभी भी नहीं किया है तो कोई बात नहीं, बाद में जरूर कर लेना, ठीक है। और आपको पता ही है हमारा बैच लॉन्च हुआ है, so you guys are aware about this. So I'm not gonna dwell into it today in order to save an interest of time. 20th मई को हमारा बैच लॉन्च हुआ था, ठीक है। Okay, guys, I am here, so no worries, just chill. So, just wanted to let you know that we have 3 days of unlimited trial, and these are the price points. The best part is that each of the subscription comes with unlimited examinations access, which basically means that अगर आपने subscription ले ली है, तो you're not taking it for just one particular examination goal. It comes for all the goals that possibly exists on Imbibe's platform. And बच्चों, आपको पता है कि आपके सेशन के पहले और बाद में भी हम शेयर करते हैं आपके साथ कुछ एक्टिविटीज और कुछ रीडिंग मटेरियल। जब आप इनको लाइव क्लास के साथ क्लब करके रेगुलरली फॉलो करते हो, इट एक्चुअली रिजल्ट्स इन अबाउट 12.6 to percentage of improvement on an average. That's the beauty of this. So make sure to do that. Now, people as resources, the chapter that we're getting started with. Human capital formation and quality of population are the two topics that we'll be doing today, under which the concepts are going to be: what do you mean by people as human resource, human capital formation, vicious cycle, market and non-market activities, quality of population, education as a quality of population, health as a quality of population, and these are the topics that we'll be covering, ठीक है। तो अगर अभी तक भी आपने नहीं इम्बाइब लेंस को किया है एक्सप्लोर, तो अब कर लो, ठीक है। दिस इज द टाइम वेयर यू शुड गो हेड एंड डू इट नाउ, बिकॉज the more you go, the more you explore it, the more is where your books will come to life and the better it is going to be, because normally जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें बोरिंग लगने लग जाती है चीजें, किताबें वही ब्लैक एंड वाइट सिस्टम लगने लग जाता है। सो लेट्स फिक्स दैट, and imbibe lens is what is going to help you in order to do so, right? चलो तो शुरू करते हैं हमारा सेशन। Now you guys know the drill. We'll start with 3 questions, so let's begin with the first 3 questions. What does the term people as a resource primarily refer to? Number of people living in a country, potential of human beings to contribute to the economy and society, the consumption habits of individuals, or the genetic diversity within a population.
What does the term people as a resource primarily refer to? People as a resource जब हम कह रहे हैं तो इसका प्राइमरी मतलब क्या होगा, हम क्या इम्प्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं? बच्चे रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स इज एनीथिंग दैट कम्स टू बी यूजफुल फॉर अस. सो व्हेन वी आर सेइंग दिस, वी बेसिकली आर रेफरिंग टू द पोटेंशियल that exists anywhere, that is actually provided to a place by its citizens. Citizens के द्वारा provided जो भी आपके लिए कहीं भी होती है contribution in economy in society, उसको रेफर करते हैं पीपल एज रिसोर्स, राइट? सो ऑसम यू गाइस, प्रतिभा, शुभम, स्टूडेंट, सुपर्ब. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज गुड हेल्थ कॉन्ट्रीब्यूट टू पीपल्स प्रोडक्टिविटी? गुड हेल्थ जो है वो लोगों की प्रोडक्टिविटी में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करता है? उन्हें खुश करता है, उनका काम एफिशिएंटली करने में मदद करता है, रिड्यूस करता है जो एजुकेशन की नीड है उसको, या इंक्रीज करता है नंबर ऑफ पीपल इन अ नेशन? How does good health contribute to people's productivity? So whenever people are in good health, they'll be able to concentrate more, they'll be able to give their 100% in their performance, and hence will increase their efficiency. So it ensures that people can work efficiently, right? Option B. So Pratibha, Shubham, Shanika, student, very good. Moving on to the next question. Which of the following is an example of investing in human resources? इनमें से कौन सा investment in human resources का example है? Building more and more factories, increasing production of goods, conserving the natural resources, improving education and healthcare. So because we have done second part, we kind of have an idea of what does this mean. Which of the following is an example of investing in human resources? The correct answer would be by improving the education and healthcare. These are the primary things which actually make a difference. And because they make a difference, when you focus on education or healthcare of any place, that improvises the overall रिसोर्स बिल्डिंग ऑफ ह्यूमंस. ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं. अ लॉन्ग टाइम अगो ह्यूमंस स्टार्टेड यूजिंग स्टोन्स एज वेपन इन हिज डे टू लाइफ. With this, the unnoticed stones have become an important resource for humans till date. It is the model of resources. Let us watch this session to know more about it. How has that been happening? बच्चे देखो, ऐसा है कि हमने डेवलपमेंट चैप्टर, सॉरी रिसोर्सेज चैप्टर जो है वो क्लास 8th में पढ़ लिया है. क्लास 10 में आपको वापस पढ़ना है, बट क्लास 10th 8th में भी हम रिसोर्सेज पढ़कर आए हैं. और जब हमने वहाँ रिसोर्सेज पढ़ा है, हमने देखा है कि कैसे कोई भी चीज़ जो इंसानों की ज़रूरत पूरे करने में उनकी मदद करती है उसे हम रिसोर्स की तरह रेफर करते हैं. उसमें हमने सबसे बड़ी चीज़ ये देखी थी कि सबसे बड़ा रिसोर्स तो ह्यूमंस खुद ही है. दे आर लाइक द बिगेस्ट रिसोर्सेज, राइट? तो ये चैप्टर जो है वो हमें यही एक्सप्लेन करने वाला है. आप ये क्वेश्चन आंसर करो कि कभी भी किसी भी देश की पॉपुलेशन कहीं बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन फॉलोड बाई चाइना. तो ऐसे कुछ देश हैं जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड है, लाइक अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी एग्जिस्ट्स ओवर देयर, वेयर एज देयर सम ऑफ द कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल रशिया.
मतलब इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी उनकी लैंड स्पेसिंग है, लेकिन पॉपुलेशन उस प्रोपोर्शन में बहुत ही ज्यादा कम है, वैसे हम कह रहे हैं। तो इन जनरल देयर आर कंट्रीज व्हिच हैव लाइक अ लॉट ऑफ पीपल, द पॉपुलेशन इज रियली हाई, वेयर एज देयर आर आल्सो दीज कंट्रीज वेयर द पॉपुलेशन इज प्रीटी स्मॉल। व्हाट डू यू थिंक, हाउ विल यू डिस्क्राइब पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन? आपके हिसाब से कहीं की भी पॉपुलेशन क्या है? क्या वो लोगों के लिए, महादेश के लिए ब्लेसिंग है, या वो एक देश के लिए कर्स है? इज इट लाइक अ गुड थिंग फॉर अ नेशन? इज इट समथिंग दैट विल हेल्प देम? इज इट लाइक एन एसेट, और इज इट अ लाइबिलिटी, अ बर्डन, एंड नॉट सच अ ग्रेट ब्लेसिंग, रादर कर्स? ब्लेसिंग है कि बून है, क्या है, आपको बताना है। I am, good evening. Can you guys help me understand how would you describe it? How do you think would you describe population of a nation? Do you think it's a blessing for the nation? Do you think it's a curse for the nation? What possibly could it mean as per your understanding? I'm waiting for you guys to reply. पीपल आर ब्लेसिंग टू द नेशन, बाय? क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि अगर नेशन है तो नेशन में लोगों की, अगर लोग ज्यादा हैं तो उन लोगों का ख्याल भी तो रखना होता है। उन लोगों को खाना चाहिए होगा, रिसोर्सेस चाहिए होंगे, अलग अलग चीजें चाहिए होंगी, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बर्डन नहीं बन जा रहा है देश पे? बेटर कैसे हो रहा है? Why do you think possibly is this a blessing? मेरा सवाल यही है कि आपके हिसाब से ब्लेसिंग क्यों है? चलो, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू एनी विच वेज एक्सप्लोर थ्रू दिस सेशन। तो हम ये समझने वाले हैं कि कहीं भी देश में जब इकोनॉमी होती है, हमें ये पता है कि इकोनॉमी प्रोड्यूस करने वाले और प्रोडक्टिविटी ऐड करने वाले तो लोग खुद ही होते हैं, बट हमें ये भी पता है कि ये सारी इकोनॉमी और ये प्रोडक्टिविटी जो ऐड हो रही है वो इस्तेमाल भी लोगों पे ही होती है, खर्च भी लोगों पे ही होती है। लोगों का घर बार देखना, उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, नेसेसिटीज प्रोवाइड करना, जैसे कि रोड सर्विसेज, फूड, क्लोथिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम एज अ पार्ट, राइट? तो कहीं भी किसी भी नेशन में जो पॉपुलेशन है वो लाइबिलिटी है या असेट है, वो उसके इकोनॉमी में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेगी, क्या वो ह्यूमन कैपिटल बन पाएगी या नहीं, ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं आज के इस सेशन में, ठीक है? तो पीपल एज अ रिसोर्स से हमारा क्या मतलब है? जब हम पीपल एज अ रिसोर्स कह रहे हैं बच्चे, वी आर बेसिकली रेफरिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन, ठीक है? एंड स्पेशली द वर्किंग सेगमेंट, वर्किंग पीपल जो प्रोडक्टिवली एग्जिस्ट करते हैं, अपने स्किल, स्ट्रेंथ, एबिलिटीज, मेंटल, फिजिकल जैसा भी है उसको इस्तेमाल करके किसी तरह का प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या सर्विसेज करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी ऑफ द नेशन, ठीक है? अब पॉपुलेशन की तरफ देखने का मल्टीपल नजरिया है, ठीक है? करेक्ट, अहम, बिल्कुल सही बात है। सो पीपल एज अ रिसोर्स जब हम कह रहे हैं, हम हमारे, यही आपको याद रखना है, हम किसको रेफर कर रहे हैं? कंट्रीज वर्किंग पीपल को रेफर कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज दैट दे कैन परफॉर्म, ठीक है? Guys, I don't want to get into your own conflicts and you know kind of disagreements that you're having. I think all of us need to just cool down a little bit. छोटी छोटी सी बातों पे आप सब बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव हो जाते हो, सो जस्ट इग्नोर। अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया, यू डू नॉट एसोसिएट विद इट, आई थिंक वी शुड जस्ट लेट इट इग्नोर एंड ऑल्सो जस्ट ट्राई एंड नॉट इंडल्ज इन रैंडम कॉन्वर्सेशंस, लाइक किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है।
मेरे अंदर अभी बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं आपको इन सब चीज़ों पे समझाऊं, ज्ञान दूं। मुझे ये लगता है कि आप इतने बड़े हो कि आप ये सब चीज़ें हैंडल कर सकते हो, समझ सकते हो कि वेयर इट्स रिक्वायर्ड, वेयर इट्स नॉट रिक्वायर्ड। हैविंग हेल्दी डिबेट्स एंड ऑल मेक्स टोटल सेंस, बट हैविंग रैंडम rants going on in the chat, I am not so much a fan of it. Okay, तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, यानी कि पॉजिटिव साइड ऑफ अ पॉपुलेशन, नेगेटिव साइड ऑफ अ पॉपुलेशन, दोनों समझेंगे। पॉजिटिव साइड क्या है? पॉजिटिव साइड ऑफ अ पॉपुलेशन बेसिकली ये कहता है बच्चे कि एम क्या हो गया, पॉजिटिव साइड ये कहता है कि जब पॉपुलेशन बड़ी होती है तो वो क्या होता है, कई बार कई सारे प्रॉब्लम्स जो हैं उसको ओवरलुक करने में मदद कर सकती है, कि जैसे हमें फूड प्रोवाइड करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है, एक्सेस प्रोवाइड करना है, क्योंकि जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, छोटे स्केल में हो बड़े स्केल में हो, एंड दे विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ ईच अदर. But whether a population really is acting as an asset or a liability, it completely depends upon the quality of the population and the particular population, its context of the nation and context and the development status of the population. यानी कि इसका कोई clear definition नहीं हो सकता है. It can be very very different for different countries and that's how it come out as results. ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन अगर बड़ी है तो हमें यह ध्यान रखना है कि उस बड़ी पॉपुलेशन को हम यूटिलाइज अगर अच्छे से कर लें तो वो पॉपुलेशन हमेशा ही एक ब्लेसिंग बन करके आएगी. किस तरीके से यूटिलाइज करें कि हम फिगर आउट कर लें कि लोगों का खाना पीना, बेसिक नेसेसिटीज, शेल्टर, क्लोथ, अच्छे हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशन, ये सब अगर अच्छा हो जाता है तो प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होकर के बेटर हो जाता है. ठीक है, अब बात यह है कि एग्जिस्टिंग जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम फर्दर कैसे डेवलप कर सकते हैं. बच्चे देखिए, ह्यूमन को हम रिसोर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रिसोर्स हम हर एक उस चीज को कह रहे हैं जो ह्यूमंस को उनके अचीवमेंट्स में और उनके एक्शंस को फुलफिल करने में मदद करता है, और उसमें ह्यूमन सबसे बड़ा फैक्टर खुद ही है. ह्यूमंस आर द बिगेस्ट हेल्प टू देमसेल्व्स, दे आर द बिगेस्ट टूल फॉर देमसेल्व्स. वो खुद ही सबसे ज्यादा खुद की मदद कर रहे हैं. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अब वो किस लेवल की मदद कर पा रहे हैं. लेट्स जस्ट से दैट यू गो टू समबडी और आई आस्क सम ऑफ यू टू हेल्प आउट अ चाइल्ड इन टर्म्स ऑफ स्टडी. मैंने कहा कि आप यार स्कूल में सीनियर क्लासेस में हो, किसी जूनियर को मैंने तुम्हें बोल दिया है कि उसकी हेल्प करो. अब आप 9th स्टैंडर्ड में हो, आप 9th स्टैंडर्ड में हो, आप उसकी हेल्प करने जाओगे और मान लेते हैं कि ये कोई 7th स्टैंडर्ड का बच्चा है. आप उसकी हेल्प करने जा रहे हो क्योंकि आप 2 साल ही सीनियर हो, आपका जो एक्सपोजर है वो रिलेटिवली कम है एजुकेशन में, तो आप जो उसकी मदद कर पाओगे वो थोड़ा लिमिटेड होगा. Whereas somebody who's in 12th standard will be very much easily able to help a student of a 7th standard. यानी कि जितनी एजुकेशन मिल रही है उतना स्किल सेट बढ़ जा रहा है, उतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ जा रही है, उतना ज्यादा डेवलपमेंट हो जा रहा है. तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं. अब मैं आपको ये समझा रही थी कि आप जब 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो और अपनी स्टडीज कर रहे हो, आप ऑलरेडी एक ह्यूमन रिसोर्स हो और अपने आप को लेवल अप कर रहे हो. बट अगर वो 9 से आप 12th स्टैंडर्ड में चल गए तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी, आपके स्किल्स, आपके नॉलेजेस और बढ़ जाएंगे. यानी कि इवन एज अ ह्यूमन रिसोर्स व्हिच बोथ ऑफ यू आर, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, अ स्टूडेंट ऑफ कॉलेज आल्सो, एवरीवन इज अ ह्यूमन रिसोर्स. बट द लेवल ऑफ द रिसोर्सफुलनेस, आप कितने ज्यादा रिसोर्सफुल हो, आपकी स्किल सेट, नॉलेज सेट क्या है, किस लेवल की है, वो इससे डिटरमाइन होती है. ठीक है, जितना ज्यादा आप अपने अंदर प्रोडक्टिव पावर ऐड करोगे, जितना ज्यादा अपने आप को शार्प करोगे, उतना ज्यादा आपकी जो प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और आउटकम, जो आपका आउटपुट है, वो इंप्रूव होता चला जाएगा. तो इस प्रोसेस को हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं. ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यही होता है बच्चे कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो जब अपने आप को और ज्यादा शार्पन अप करता है और ज्यादा रिसोर्सफुल बनाता है, ठीक है, मदद लेता है अपनी फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन में, अपने प्रोग्रेस को आगे बढ़ाता है, ठीक है, उसे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं. और जैसे जैसे एक पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन से रिसोर्स बनती है, यानी कि पीपल से पीपल रिसोर्स बनती है, और ह्यूमन रिसोर्स से ह्यूमन कैपिटल बनती है, उतना ज्यादा उस नेशन की डेवलपमेंट होती है, उतना ज्यादा एसेट फॉर्मेशन होता है, उतना ज्यादा लोग जो है लाइबिलिटी से एसेट में कन्वर्ट होते जाते हैं. एंड दैट इज व्हाट वी बेसिकली मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स. अब आखिर ये रिसोर्स कन्वर्जन और ये डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी पॉसिबली अचीव दिस? वी कैन पॉसिबली अचीव दिस बाय मेकिंग सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स. व्हाट आई मीन बाय दिस, बच्चे जैसे अगर मैं कोई जमीन खरीदती हूँ, क्यों खरीदती हूँ, किस उम्मीद से खरीदती हूँ? अगर मैं उसको एसेट कह रही हूँ, घर को मैं एसेट कह रही हूँ, किस बेसिस पे कह पा रही हूँ?
हाउ एम आई एबल टू अचीव इट, हाउ एम आई एबल टू पुल इट ऑफ. तो बेसिकली अगर मैंने कोई घर खरीदा, अगर मैंने कोई जमीन खरीदी, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दैट द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई स्पेंट इन दिस हाउस, द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई स्पेंट इन बाइंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी, it will come back to me in return with certain profit. That is why that particular materialistic thing, that particular thing becomes an asset for me. इसीलिए वो जो भी चीज है, जमीन है, घर है, वो मेरे लिए एसेट बन जाएगा. क्यों, क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि मैंने जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट की वो मुझे प्रॉफिट के साथ रिटर्न में होगा. तो क्या ये सेम प्रोसेस हम ह्यूमंस के साथ भी फॉलो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. अगर हम ह्यूमंस को एसेट कह रहे हैं और उसके एसेट फॉर्मेशन और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो सबसे बड़ी चीज है जो हमें ध्यान रखनी है वो ये बात है कि ह्यूमंस बच्चे उन पे भी बिल्कुल जैसे आप लैंड वगैरह पे इन्वेस्टमेंट करते हो, आप कुछ इनपुट देते हो, वो इनपुट इंक्रीज करता है और फिर आपको आउटपुट मिलता है. तो एग्जैक्टली उसी तरीके से ह्यूमंस पे भी हम ह्यूमन रिसोर्सेज, बेटर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए इनपुट्स देते हैं. ये इनपुट्स क्या है? इनको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं. ये इनपुट्स है इन सिंपलेस्ट ऑफ द टर्म्स एजुकेशन एंड हेल्थ. यानी कि एजुकेशन, ट्रेनिंग, अच्छी हेल्थ केयर, मेडिकल सर्विसेज, इन सारी चीजों के साथ जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो फिजिकल कैपिटल के फॉर्म में ऑन ह्यूमंस, इसका डायरेक्ट असर हमें दिखता है इन द फॉर्म ऑफ द आउटकम्स फ्रॉम द ह्यूमंस व्हेन दे बिकम मोर स्किलफुल, व्हेन दे बिकम मोर ऑफ एन एसेट एंड द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इंक्रीजेस एंड they then tend to get the ability to earn higher incomes and contribute higher in the economy of the nation. तो ज्यादा बेटर एडुकेटेड, ज्यादा बेटर ट्रेन्ड जो लोग होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी हायर होती है, जो ज्यादा हेल्दियर होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी हायर होती है. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ बोथ ऑफ दीज थिंग्स, दीज आर द पीपल who would or who will contribute the maximum in the nation's economy or development in general. तो एडुकेशन और हेल्थ की बात ये हो गई. अब इसका एग्जाम्पल हम एक लेकर के समझते हैं. ठीक है, जैसे कि हम कह रहे हैं जो एडुकेटेड लोग हैं वो ना ही सिर्फ ज्यादा है, मतलब मोर एडुकेटेड एंड मोर हेल्थियर पीपल सिर्फ वो हायर इनकम से ही अर्न नहीं कर रहे हैं, वो सोसाइटी को भी इन जनरल बहुत तरीके के गेन्स देते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से. ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीकों से कैसे गेन दे रहे हैं? अगर मान लो बच्चे डायरेक्ट तरीके से मैं सोचूं, कोई इंसान एडुकेटेड है, हेल्दी है, कोई एडुकेटेड है, बेटर इनकम अर्न कर पा रहा है, तो डायरेक्ट तो ये हो गया. ठीक है, इनडायरेक्ट क्या हो गया कि उसके पास क्योंकि अच्छी इनकम है उसने कुछ और कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर दी, तो इनडायरेक्टली वो उन लोगों को भी ग्रो करा रहा है जो अदरवाइज नहीं ग्रो करते, उनके पास पैसे आ रहे हैं. ये भी इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करती है, सोसाइटी की डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट करती है. The more a person is happy, healthy, mentally stable and more educated, the more advanced and open and progressive their mindset would be, which will also help in the development again of the society. तो educated और healthier population जो है वो हमेशा अच्छी होती है, हमेशा benefit add करती है. और human capital एक बहुत ह्यूमन कैपिटल एक्चुअली सबसे बड़ा रिसोर्स है, क्योंकि बाकी बच्चे दुनिया में जो भी रिसोर्स है, मशीन से लेकर के मैन मेड चीजों से लेकर के नेचुरल चीजों तक, वो सारी एक्चुअली ह्यूमंस ही इस्तेमाल करते हैं और ह्यूमंस ही वो टेक्नोलॉजी भी डेवलप करते हैं जिससे उसे यूज कर सके. तो सुप्रीम इन सब में कौन हुआ? ह्यूमन हुआ. ह्यूमन के बिना लैंड, कैपिटल, कोई भी चीज किसी भी काम की नहीं होती है. लैंड और कैपिटल चला लो, लेबर चला लो, कोई भी अपने आप फंक्शन नहीं कर सकता. सबको किस चीज की जरूरत लगती है? सबको ह्यूमन की और ह्यूमन कैपिटल की जरूरत है. जब हमने द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर किया था तब भी हमने देखा था कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ह्यूमन कैपिटल होता है, क्योंकि वो बाकी फैक्टर्स को अकाउंट में लाता है, बाइंड करता है और स्ट्रक्चर करके एग्जीक्यूट करवाता है. तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, सबसे ज्यादा जरूरी और इफेक्टिव है और उसके सबसे सुप्रीम है और उसके ऊपर और कुछ भी नहीं है. कई सालों से इंडिया में देखा गया है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन जो है वो बहुत बढ़ी रही है. ठीक है, और बढ़ती ही जा रही है. और इंडिया जैसे देश में हमारे कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए हमने ये समझा है कि हमारा जो लार्ज चंक है पॉपुलेशन का वो एक्चुअली लायबिलिटी है, ना कि एसेट है. यानी कि वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर, इट इज द अल्टीमेट रिसोर्स है, इट इज ऑल्सो द सुप्रीम रिसोर्स, राइट, द मोस्ट सुपीरियर वन. कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि हमारी पॉपुलेशन जितनी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही है, जितना ज्यादा हेल्प नहीं कर रही है, उससे ज्यादा कंज्यूम कर ले रही है, उससे ज्यादा खत्म कर ले रही है, बर्डन बन जा रही है इकोनॉमी पे. लेकिन इसी इकोनॉमी के बर्डन को जो है, हाँ जी बच्चे क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा सेक्शन कर लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन करेंगे.
इसी बर्डन को हम आराम से जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि जैसे कि हम एजुकेशन स्कूल्स बनाते हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज चलाते हैं, हायर एजुकेशन चलाते हैं, लोगों के लिए जनरल अवेयरनेस कैंप चलाते हैं, इस तरीके से लोगों में नॉलेज, स्किल, हेल्थ, ये सारी चीजें डालते हैं, तो ये सेम पॉपुलेशन जो है बच्चे, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रही हो, एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम कर रही हो, यहाँ पे क्या हो जाता है, रिसोर्सेज जब आप एजुकेशन और हेल्थ पे स्पेंड कर देते हो, तो जो इनकी ट्रेनिंग है, एग्रीकल्चर वर्कर्स का नॉलेज है, वो उनको इक्विप कर देता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, साइंटिफिक रिसर्चेस को पढ़कर उनका इस्तेमाल करने के लिए, उनके साथ ग्रो करने के लिए। और धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो बेटर होने लग जाती है और ज्यादा होने लग जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम जापान का एग्जाम्पल देखें, और जापान का एग्जाम्पल जो है ना वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों जापान का एग्जाम्पल इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग और इतना अच्छा है? जापान एक्चुअली इज वन ऑफ द नेशंस जिसके पास अपना कोई भी नेचुरल रिसोर्स है ही नहीं, यानी कि मिनरल्स और आपके मेटल्स और ये सारी अलग अलग चीजें जो होती हैं, सॉल्ट होता है, क्या क्या होता है, ये अलग अलग देश प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, किसी के पास ऑयल होता है, और कुछ ना कुछ नेचुरल रिसोर्स जो है, और कुछ ना कुछ नेचुरल रिसोर्स जो है बच्चे प्रीटी मच हर एक कंट्री के द्वारा जो है उनके पास होता है और प्रोड्यूस किया जाता है, जो उनके इकोनॉमी में, उनके डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा मदद करती है। लेकिन जापान का एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग है। जापान एक लौता ऐसा देश है और डेवलप्ड भी है, इसलिए भी इंटरेस्टिंग है। जापान एक ऐसी कंट्री है जहां पे एक्चुअली कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है, मतलब पेट्रोलियम, मेटल्स, मिनरल्स उस रेट में नहीं है कि उन रिसोर्सेज की मदद से वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सके, कि अच्छा बहुत सारा खेती बाड़ी कर लिया तो उसका प्रोडक्शन, उसकी ट्रेड करके हम अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, इनकम ला रहे हैं, या बहुत ज्यादा हमारे पास ऑयल है, या बहुत ज्यादा हमारे पास मेटल है या मिनरल्स हैं, कुछ भी नहीं है। डिस्पाइट ऑफ दैट, जापान इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड नेशंस अक्रॉस द एंटायर वर्ल्ड एंड ऑल्सो वन एक्सपेंसिव वन बिकॉज ऑफ दैट। जब उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थी तो उन्होंने ऐसे कैसे अचीव कर लिया, जैसे कि हम कॉन्स्टेंटली कहते रहते, राइट, कि मिडिल ईस्ट में तो कुएं का खदान है इसलिए वो डेवलप है, वहां पे ये है इसलिए वो डेवलप्ड है। तो जापान के लिए क्या काम कर गया? तो बच्चे ये ध्यान रखना है कि जापान ने इन्वेस्टमेंट की दुनिया के सबसे बड़े सुप्रीम रिसोर्स पे, अपने सबसे बड़े और ताकत पे और रिसोर्स पे, वो है ह्यूमन रिसोर्स। They focused on converting the human resources into the best quality human capital by investing a lot into education and health. So the people of Japan, if you see, have made this very efficient use of other resources जैसे कि land, capital, जो भी limited बाकी resources थे जो in general growth में help नहीं कर सकते थे, उन resources की मदद ली और अपने सबसे सुप्रीम, और अपने सबसे सुपीरियर रिसोर्स को इन्होंने क्या कर दिया, सबसे एफिशिएंटली स्टार्ट करना यूज किया, जो कि क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेस है। एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी दोनों ही बढ़ती गई और लोगों की वजह से बढ़ती गई, उनके अंदर के जो स्मार्टनेस है, स्किल सेट है, उसकी वजह से बढ़ती गई। ठीक है बच्चे, देखो ऐसा नहीं है, कोई भी देश ऐसा नहीं हो सकता जिसके पास नेचुरली कोई कुछ भी रिसोर्स नहीं है, सी से रिसोर्सेस मिल सकते हैं। हम बात ये कर रहे हैं, दे हैव नो स्ट्रॉन्ग बिग नेचुरल रिसोर्स जिसके बेसिस पे वो अपनी इकोनॉमी को बिल्ड कर सके। दैट इज द पॉइंट विच यू हैव टू फोकस एट। बट डिस्पाइट ऑफ दैट, हाउ हैव दे बिकम डेवलप्ड? इतने डेवलप्ड क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया और उस पर काम किया। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कैसे की ह्यूमन रिसोर्सेज पे? ह्यूमन रिसोर्सेज पे इन जनरल इन्वेस्टमेंट वैसे भी कैसे होती है, एजुकेशन से होती है और हेल्थ से होती है। तो ये हम देख सकते हैं डायरेक्टली कि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे डेवलपमेंट की तो उनको हायर इनकम, हायर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, high income, high productivity, better trained person as well as the high productivity of healthier people, सब पे ध्यान रखा। उन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज पे जो है और ज्यादा डेवलपमेंट डाली, जिससे बेटर रिटर्न्स आए फ्यूचर में। इन्वेस्टमेंट जो है लोगों की वैसी है जैसे लैंड और कैपिटल की होती है, वो आपको हमेशा इन्वेस्ट करने पे बेटर रिटर्न्स देती है। जैसे कि एक बहुत अच्छा और सुंदर एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, मुझे बहुत सही लगता है। ये एग्जाम्पल है बच्चे एडुकेशन को लेकर के। एडुकेशन को लेकर के क्या, एडुकेशन को लेकर के ये सिंपल सा एग्जाम्पल है कि एक सेट ऑफ पेरेंट्स है जो एडुकेटेड है और एक सेट ऑफ पेरेंट्स है जो अनएडुकेटेड है। ठीक है, एडुकेटेड
जनरल एक्सपेक्टेशन क्या होगी? जनरल एक्सपेक्टेशन ये होगी कि एडुकेटेड लोगों की इनकम बेटर है, और ऐसा ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और ये जो है अनएडुकेटेड की रिलेटिवली लेस है, कम है। हो सकता है अगर ये बेटर है तो ये अपने अच्छे बच्चों को बेहतर पालन पोषण एक्सपोजर देंगे, यानी कि बेटर स्कूल्स वगैरह में भेजेंगे, बेटर एजुकेशन पे ध्यान देंगे, हो सकता है हायर एजुकेशन पे भी भेजे। प्रॉबली प्रॉबली जो गरीब लोग हैं वो स्कूलिंग भी नहीं करा रहे होंगे। तो बच्चे देखो, सिंपल सी बात ये है कि कोई अगर एडुकेटेड इंसान है, उसके साथ दो फैक्टर्स हो जाती है, क्योंकि वो एडुकेटेड है तो एक अनएडुकेटेड इंसान के कंपैरिजन में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स एंड नॉर्मली वो ज्यादा ही अर्न करेगा, और ज्यादा अर्न करेगा तो उसके पास अफोर्डेबिलिटी टू बी एबल टू टीच देयर चाइल्ड विल ऑल्सो बी अवेलेबल। सेकंड, बिकॉज दे आर themselves educated, they understand the importance and the meaning of education in people's life and how effective it is and how essential it is। तो वो अपने बच्चे को जरूर एडुकेट करे, चाहे वो दुनिया के सबसे अच्छे स्कूल में करे, वन ऑफ द एक्सपेंसिव स्कूल्स में करे, या फिर एक सिंपल से स्कूल में करके पढ़ा दे, क्योंकि पर्पस ये है कि नॉलेज डेवलपमेंट होनी चाहिए। कहाँ से हो रही है इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, राइट। लेकिन अब वहीं पे एक अनएडुकेटेड पेरेंट है अगर, तो वो अनएडुकेटेड पेरेंट क्या करेगा? वो अनएडुकेटेड पेरेंट जो है वो चाहेगा डेफिनेटली कि उसका बच्चा स्कूल जाए। They would want that their children also go to schools, but they're also very very conscious about the factor that how will the child be fed। अगर मम्मी छोटा सा कोई काम करने और पापा भी ऐसे छोटा सा ठेला वेला चलाने का काम करते हैं, ऐसे छोटी छोटी ऐसे छोटे छोटे काम करते हैं बच्चे। देखो, क्लास और एडुकेशन, एक चीज मुझे बहुत ज्यादा मैंने नोटिस किया है कि जब हम एडुकेशन की बात करते हैं तो बच्चों के दिमाग में ये आता है कि मैम कौन से ग्रेड तक पढ़ाई की है। बेटा, एडुकेशन का मतलब होता है किसी भी तरह की स्किल डेवलप करना। आलिया भट्ट ने भी स्कूल नहीं किया है, विराट कोहली ने भी 8th के बाद पढ़ाई नहीं की है, कोई बात नहीं, 8 तक पढ़ाई की, बेसिक पढ़ाई की, लेकिन स्किल डेवलप किया या नहीं किया, एडुकेट किया या नहीं किया खुद को स्पोर्ट्स में। एडुकेशन का मतलब सिर्फ किताब से पढ़ना नहीं होता है। हो सकता है कि मैंने कभी भी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी हो, पर मैंने कुकिंग के बारे में दुनिया की हर एक पॉसिबल चीज जो हो सकती है वो पढ़ ली है, एंड नाउ आई डू एब्सोल्युटली इनोवेटिव कुकिंग, बिकॉज मेरी कुकिंग की नॉलेज और कुकिंग का मेरा एक्सपोजर और स्किल जो है वो बहुत हाई है। पर मैं फिर भी एडुकेटेड कहलाऊंगी कुकिंग के फील्ड में, एंड देन व्हाट आई विल बी क्रिएटिंग, probably I'll be the best chef in the entire world। So that is what you have to understand when we are talking about the education. It could be importance of being skilled and knowledgeable in any field of life, may not necessarily mean school education particularly, ठीक है। तो वैसे ही हम देखते हैं कि जो पढ़े लिखे पेरेंट्स नहीं है, उनसे पहले तो ये शायद लगता है कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेज भी नहीं पाएंगे। उनको चाहिए होगा कि उनके अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं काम करके घर का खर्चा संभाले, या इन जनरल खर्चा नहीं भी संभाल रहे हैं तो स्कूल, प्रॉपर स्कूल, अच्छे स्कूल, प्राइवेट स्कूल जाने के पैसे नहीं है, तो वो पब्लिक स्कूल्स ज्वाइन करेंगे, उसमें कभी पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स होगी नहीं होगी। एट द एंड ऑफ इट, what we have to understand is that these uneducated parents will probably not have money to afford it first. Second, even if they are somehow able to afford it, will probably not also push for it, will not find that educating their children or spending money on education on their children is necessarily benefiting them, because they do not know the benefits of it, benefits of education, they're not aware about it, right? तो ये होता है investment in human resource and the cycle that goes around it। So what we have to basically say over here and understand is that दोनों ही चीजें, educated parents हो या uneducated parents हो, दोनों ही एक साइकिल रन करते हैं। दोनों ही एक साइकिल रन करते हैं। अब एडुकेटेड पेरेंट्स का जो साइकिल है वो अच्छा है, इट्स लाइक अ गुड साइकिल टू हैव, विल बेनिफिट द सोसाइटी, बट अनएडुकेटेड का सोसाइटी के ऊपर असर नहीं होगा अच्छा। तो इसको हम कहते हैं वर्चुअस साइकिल, यानी कि अ गुड साइकिल विच विल हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, और इसको हम कहते हैं विशियस साइकिल, अ साइकिल
which is happening but it is not great and good for us. तो अब आपको इसका जवाब देना है. Dash and dash are the major determinants of the earning of any individual in the market. Okay, people, and the answer is pretty simple. I hope you guys were able to get it right. Dash and dash are the major determinants. तो हमारा एडुकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, और एडुकेशन क्या देता है हमें? नॉलेज देता है और स्किल देता है. तो एडुकेशन एंड स्किल विल बी द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ओवर हियर. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज एडुकेशन एंड स्किल. परफेक्ट. तो मैंने विशियस और वर्चुअस साइकिल आपको समझा दिया है. हमें समझ आ गया है कि वर्चुअस साइकिल क्रिएट होता है जब लोग एडुकेटेड होते हैं, एडवांटेज्ड होते हैं. ये समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल. तो ये इनकी वजह से जो एक्शंस होते हैं वो साइक्लिक तरीके से एक वर्चुअस अच्छी साइकिल, राइट साइकिल बनाती है. दूसरी होती है विशियस साइकिल, जो कि क्रिएट हो जाती है अगेन पेरेंट्स से जो एडुकेटेड नहीं होते, क्योंकि उनको खुद ही एडुकेशन नहीं मिली, उनको इंपॉर्टेंस नहीं पता, उनको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होने से क्या चेंजेस आएंगे ये नहीं पता. तो ये सारी चीजें उनकी बहुत ज्यादा करती हैं मदद वर्चुअल साइकिल बनाने में एडुकेटेड पेरेंट्स की. और विशियस साइकिल सैडली एनफ बिकॉज ऑफ दीज रीजंस ओनली गेट्स क्रिएटेड व्हिच इज नॉट रियली ग्रेट फॉर द सोसाइटी. अब बात करते हैं एक्टिविटीज की, अलग अलग काम जो लोग करते हैं सोसाइटी में. बच्चे इसका थोड़ा सा ग्लिम्स आपने पहले ही देखा है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज के दो हिस्से होते हैं, वो मार्केट एक्टिविटीज होती है या नॉन मार्केट एक्टिविटीज होती हैं. यानी कि जब आप किसी एक्टिविटी को मार्केट में जाकर परफॉर्म करते हो एक्सपेक्टिंग इन रिटर्न सम रिकग्निशन, समथिंग इन रिटर्न लाइक नॉट जस्ट रिकग्निशन एंड ऑल बट मनी कॉम्पनसेशन. जब आप उम्मीद करते हो कि आप ये काम करोगे तो आपको इस बात के पैसे मिलेंगे, तो इसको हम कहते हैं मार्केट एक्टिविटी. जब वो सेम एक्टिविटी, अब ऐसे नहीं कि एक्टिविटीज बिल्कुल अलग होती है, सेम एक्टिविटी जब घर पे परफॉर्म की जाती है जहां पे बदले में पैसे नहीं मिलेंगे, वैसे एक्टिविटी को हम कहते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटी. अब ये मार्केट एक्टिविटी बच्चे तीन हिस्सों में डिवाइड की जा सकती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमरी क्या हो गया? प्राइमरी सेक्टर वो होता है जहां पे हम कभी भी नेचर से इंटरैक्ट करते हैं या उसे एक्सप्लॉइट करते हैं और फिर हम किसी तरीके का सामान का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि फार्मिंग, फिशिंग, फार्मिंग, एग्रीकल्चर. दीज आर द एग्जांपल्स. क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर सबसे बड़ा फील्ड होता है, इसको एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोला जाता है. सेकंड होता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें रॉ मटेरियल मिल जाने के बाद हम चीजों को मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसके फॉर्मेशन को चेंज करते हैं, कुछ नया बनाते हैं उससे. अब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ज्यादा, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आपको वो नहीं मिलेंगी, ऐसे नहीं मिलेंगी कि अच्छा ठीक है ये यहाँ पे काम चल रहा है और ये बड़ी इंडस्ट्री है, दिस इज व्हाट इट्स ट्राइंग टू डू. नो, दीज विल मोस्टली बी द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फूड प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज. इट कुड बी एग्जांपल ऑफ एनी ऑफ दिस. ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर में ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग के टर्म्स में. सर्विस में क्या हो गया? जहां पे आप अपनी सेवा दे रहे हो, आप कुछ सामान प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, अनलाइक द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. तो सर्विसेज क्या हो जाती हैं? बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, hospitality, insurance. All of these are basically the basic services which is provided by the tertiary sector, and we cannot imagine the society to grow without the tertiary sector is the reality of today's world. So which of these jobs fall under the service sector? Choose any two options. दो correct answer है यहाँ, banker, farmer, factory worker or tailor. Which of these jobs fall under the service sector?
ओके पीपल, एंड इट वुड बी बैंकर एंड टेलर। फार्मर आपका एग्रीकल्चर में जाएगा, फैक्ट्री वर्कर सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा, ठीक है। तो मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटीज हमने समझ लिया। जब हम एक्टिविटीज करते हैं जहां पे पेमेंट की गारंटी होती है, रिन्यूमरेशन होता है, तो उसे कहते हैं नॉन मार्केट। जब सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए सिमिलर या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज की जाती हैं तब, ठीक है। आई चूज ओनली वन ऑप्शन, दैट्स व्हाई वेस्टेड अटेम्प्ट। अहम, आई गॉट इट। पर बेटा यहाँ तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके भी लिखा हुआ था ना कि दो सवाल करने हैं, दो जवाब है इस सवाल का। ओके, नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट मार्केट एक्टिविटीज जो है उसमें रिन्यूमरेशन होती है, दूसरी एक्टिविटी जो उसमें कोई रिन्यूमरेशन नहीं होती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। एंड इन सबको हमने अलग अलग जगह पे कंजम्पशन और प्रोसेसिंग के बेसिस पे जो है क्वांटिफाई भी कर दिया है। अब एक चीज हमें देखना होगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड डिविजन ऑफ लेबर व्हिच हैज बीन एग्जिस्टिंग फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन जनरल इन द सोसाइटी। सोसाइटी में इन जनरल बहुत लंबे समय से आपका डिविजन ऑफ लेबर जो है हिस्टोरिकली एग्जिस्ट करता है, बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। पेट्रियार्कल एज एन मैन लेड सोसाइटी है ना। हमेशा जो हेड ऑफ द फैमिली है वो एक आदमी को बनाया गया है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच औरतों को हमेशा किस नजर से देखा गया है? औरतों को इस नजर से देखा गया है कि वो घर का काम करेंगी। जैसे हमारे किताब में अलग अलग कहानियां दी हुई है, एक शक्ल की कहानी दी हुई है। शकल की कहानी में हम क्या देखते हैं? शकल की मम्मी जो है शीला, उनका काम क्या है? घर पे खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, बिस्तर ठीक करना, बच्चों का ख्याल रखना। और वहीं पे शकल के फादर जो है वो जाकर के खेत की जुताई यानी कि कल्टीवेशन, खेत में हार्वेस्ट लाना वो करते हैं। और जो भी प्रोड्यूस घर में रखने के बाद बचता है एक्स्ट्रा, उसको ले जाकर फैमिली के यूज के बाद ले जाकर के बाहर बेच देते हैं, ठीक है। अब शीला जो है अपने घर पे ये सारे काम करने के लिए ऑब्वियसली कोई भी पैसा अर्न नहीं करती है, लेकिन अपनी ही जमीन पे, क्योंकि वो फिर भी बाहर जाकर के काम हो रहा है ये करने के लिए, शकल के फादर जो है बूटा, उन्हें काफी पैसे मिलते हैं और इससे वो अपने घर को चलाना, खर्चे निकालना ये करते हैं। सिर्फ अब यहाँ तो हम ये देख रहे हैं कि चलो ये एक प्रिजम्पशन है, ये एक स्टीरियोटाइपिंग है जहां पे बोला जाता है कि औरतों का काम तो सिर्फ घर संभालना होता है। लेकिन बच्चे उससे भी बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हमने बहुत लंबे समय तक क्या विटनेस किया? हमने बहुत लंबे समय तक ये विटनेस किया कि औरतें अगर काम करने जा भी रही थी, भले उनके पास एजुकेशन स्किल सेम हो या नहीं हो तो चलो फिर भी अलग बात है, बट जब सेम हो तब भी जो है पैसे उन्हें जो है वो कम मिलते थे मर्दों से। यानी कि इवन व्हेन अ वुमेन इज बेटर और इक्वल एट पार इन हर जॉब विथ हर मेल कलीग, इवन देन शी वुड रिसीव लेस पेमेंट। बॉलीवुड में कितनी बार एक्ट्रेसेस ने इस बात को रेज किया है कि उनकी जो कॉम्पनसेशन होती है, उन्हें जो पैसे मिलते हैं वो हीरोज के कंपैरिजन में बहुत रिमार्केबली कम होते हैं। क्यों भाई? दोनों ही मूवी करे, दोनों ही मेहनत करे, दोनों ही टाइम लगा रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? या मूवीज की फॉर्मेशन ही क्यों हीरो सेंट्रिक हो रही है? व्हाई डोंट वी सी अ लॉट ऑफ फीमेल एक्ट्रेसेस सेंट्रिक मूवीज? ऐसा होता ही नहीं है। तो ये दिखा रहा है हमें कि बाकी घर का काम और ये सब कुछ औरतों का है, सर्विस डिलीवर करना, ये सब करना। लेकिन हाउस होल्ड के काम के साथ साथ अगर औरत काम करना चाहती है बाहर, तो देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी दैट शी विल बी पेड लेस देन अदर्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं हमने विलास की भी कहानी है हमारे किताब में दी हुई है। आपके पास दो कहानियां बेसिकली, सकल की, विलास की, तो दोस्त भी हैं। यहाँ पे गीता विलास की मम्मी जो है वो एक्चुअली फिश सेल करती हैं और वहां पे पेड वर्क होता है, ठीक है। तो वो जब भी लेबर मार्केट जाती हैं वो अर्निंग करती हैं, जिसकी वजह से उनके हस्बैंड को, फैमिली को काफी हेल्प मिली और एक बेसिक एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट अगर वो खुद नहीं भी थे तो अपने बच्चों के लिए कर पाए थे। तो हमें इससे ये समझ आता है कि आपके दो जो बड़े फैक्टर्स हो जाते हैं जो कहीं पे भी इंप्रूव करते हैं हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। जो लोग और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं या ऑटोमेटिकली कंसिडर कर रहे हैं फिजिकली अपने आप को, औरतें अगर कंसिडर कर रही हैं, तो इसकी वजह से कम काम दिया जाता है, पैसे कम दिए जाते हैं, रिकग्निशन कम दिया जाता है। वी हैव टू ब्रेक दीज बैरियर्स, राइट। अब इससे आता है नेक्स्ट सवाल कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, we were discussing some time back. Guys, I'm just so sorry, my stomach is really hurting. I'll just take a quick
30 seconds break and just I'll be here, but I'll just be quiet for 30 seconds because my stomach is hurting a lot. Just give me one moment to kind of get a hang on myself and get back. Yeah, I'm okay. I'm fine. Otherwise, it's just hurting a little. I'll be fine, guys. Thank you so much for asking. I will if I'm not able to. Anyways, we are towards the end of the session. I just wanted to wind up this. So, not a problem. Okay, I'll be back. तो हम अभी बात कर रहे थे ना कि कहीं की भी पॉपुलेशन वहां का एसेट है या वहां के लिए कर्स है, ये हमें कैसे पता चलेगा? हाउ विल वी गेट टू नो? वी विल गेट टू नो बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन. अब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे डिटरमाइन होता है? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कंप्लीटली इस बात पर डिटरमाइन होगा कि वहां के लोग कितने एडुकेटेड और कितने हेल्दी हैं. तो 3 चीजें जो कहीं भी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिटरमाइन करेगी वो है एडुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर. So I'm not going to continue further ahead because I know you guys have a session. So I'm going to pause it over here and we'll have another session scheduled because the very small topic is left of education and ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर को जहाँ हमें समझना है और हमें समझना है कि कैसे ये फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं इन जनरल यू नो द क्वालिटी ऑफ अ पॉपुलेशन, हाउ डज इट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ एनी प्लेस. ठीक है? I am always okay, you guys. It's very, very sweet of you to tell all of these things, but I'm fine. Thank you so much. हाँ जी, तो अगर यहाँ तक कोई डाउट है पूछ लो, बता दो, क्लैरिफाई कर लो. अदरवाइज विल एंड द सेशन. आई विल स्केड्यूल अनदर एक्स्ट्रा सेशन नेक्स्ट वीक. हमने सारी चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा सेशन, रीशेड्यूल सेशन वो सब कर ही दिया है वैसे तो. बाकी हम कर लेंगे कमिंग गोइंग फॉरवर्ड. तो अभी मुझे ये बता दो, ये इसके लिए मैं अलग से सेशन कर दूंगी स्केड्यूल. बट राइट नाउ कैन यू जस्ट लेट मी नो इफ यू गाइस हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, एनीथिंग. No? Perfect. So I'm going to end the session now over here. Let me quickly just summarize what we have done. So, see, actually, we have very, very less portion left. But I'll do an extra session. We'll have some quizzes and all of this. Okay, ठीक है. चलो, तो people who are part of the workforce are known as human resource. इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने कैटेगराइज किया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में. ये एक्टिविटीज जो है डिवाइड हो सकते हैं मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटीज में. और ये ऑब्जर्व किया गया है कि डिविजन ऑफ लेबर हैज आल्सो एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वेयर देयर हैज बीन अ सर्टेन सेग्रीगेशन इन द नेचर ऑफ द जॉब्स, नो रिकग्निशन और differentiation done in the salary payment. Okay, so it's been observed that it's done with the women. Now the quality of population is what determines the future of the nation and its development status, and there are 3 factors which determine the quality of population: education, training and healthcare. So all of this we have done. Do not forget to check out your post-class activities and the other Imbibe applications. We have come to the end of the session with this. Thank you so much everyone for being here. I'll see you guys in the next session. Yeah. Till the next time, take good care and keep imbibing. Okay, bye everyone. Take care, you guys.